What are the different emergency situations where you feel that first aid is utmost important? ओह सो मैनी है। जैसे ब्लीडिंग की हमने एग्जांपल ली, अगर ब्लीडिंग का वो घाव जो है बहुत गहरा है एंड खून बहुत बह रहा है, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जानलेवा हो सकता है। अगर यहाँ पर फर्स्ट एड तुरंत नहीं दिया या सही तरीके से नहीं दिया तो ज़्यादा खून बहने की वजह से इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। So, what ointment is to be used? How do you do that? Not every cut is same. Absolutely. How severe is that situation? Absolutely. There can be different factors to that situation. Absolutely. So what you're saying essentially is मुझे ट्रेनिंग जो कि मिली है, मुझे ये पता है कि वहाँ पे कटा है, उनको रोकना है, पट्टी बांधनी है, उसमें हल्दी, चंदन, चाय पत्ती, ग्रीस ऑयल, ब्रेक ऑयल ये सब डालकर नहीं बांधना है because that will lead to infections. Correct. तो ये हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं. And a lot of times I also see that the example you gave, cut आ गया है. A lot of people feel कि जो first aid दिया है यही इसका treatment and they don't take the further treatment. Especially heart attack. So India is a capital of हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। तो जिनको डायबिटीज है उनको हार्ट अटैक अगर आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको छाती उसी तरह दर्द करे जैसे टिपिकल हम कहते हैं छाती में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। सो मे बी द प्रेजेंटेशन इन डायबिटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। Happy and healthy morning, friends. Welcome back to one more amazing episode of Aura Health Hub. Today we are going to speak about a very crucial topic which I think each one of us should know. So it is about emergency care of first aid. What kind of first aid or what kind of emergency care should be done in any emergency health situation? So we have an amazing personality with us on today's episode. We have Dr. Shruti Arabati Patki, who is a MD anesthesiologist and an expert in emergency medicine. So let's welcome her in today's episode, Aura Health Hub. Welcome, Dr. Shruti. Thank you for accepting our invitation. Thank you So much. we are glad you are here today, and we really wanted to have an episode on this topic. So we would like to know more about you. Thank you so much. Feelings are mutual. I'm really glad to be here. So tell me, what do you want to know? So if you can tell us about your experience, if, you can tell us where have you done your education from, that will be great. All right. So basically, I am basically brought up in Thane. And eventually I did my MBBS from Karad, Krishna Institute of Medical Sciences, Karad. Right. And then I did my MD anesthesiology from Sion Hospital, which I am sure you know is largest trauma care center, tertiary trauma care center this part of the world. Yes. So my experience and my education training was basically in emergency care. Anesthesiology, very few people know is actually, people think anesthesiology or anesthesiologists deal with only operation ke waqt sulana hai. That's the only thing that they know. But actually we are emergency physicians to the rest of the medical fraternity. जहाँ पर भी emergencies होती हैं, like आपने movies में देखे होंगे, code blue, when the code blue is called out. So generally it is anesthesiologists who are on the floor resuscitating victims and patients. ICUs में generally, अभी तो अभी intensive care has become a big specialty in itself. Right. But back in the day, anesthesiologists were the intensive care specialists. Right. All emergency areas were manned by anesthesiologists. In fact, COVID के जितने भी emergency protocols बने, उसमें anesthesiologists across the world were part of creating emergency protocols in COVID also. So we are basically emergency physicians to everybody. So it becomes naturally कि मैं emergency first aid ये सारी चीज़ों में I'm interested. Yeah, right. So when you ask me what is my experience and what my story is, I am the topper of my MD batch. Wow. No, that is not to brag. The reason I say that is we knew what was supposed to be done in every case scenario, everything. We would man emergency areas. सारे जो casualties हैं, trauma centers हैं, वहाँ पर हम काम करते थे. और मेरे एक्सपीरियंस में इट्स अ टर्शरी केयर सेंटर, वहाँ पे CT MRI से लेके स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ से लेके सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. राइट. बट हमारे पास जो इमरजेंसी में पेशेंट्स आते थे, मेरी एक्सपीरियंस में मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे. ऑल्दो आई हैव द नॉलेज, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास इन्वेस्टिगेशंस हैं, मेरे पास एवरीथिंग, ऑल द सेटअप जो ज़रूरी है. राइट. पर पेशेंट के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ.
करेक्ट क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर केयर या फर्स्ट एड दिया नहीं गया है, या फिर कुछ दिया है तो बहुत ही रेडिकल, कुछ तो गंदा सा कुछ करके लेके आए हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। या So you're in this a was helpless yeah, situation. so this was there at the back of my mind जब मैं रेसिडेंसी कर रही थी. करेक्ट Eventually I had my daughter, I put her in daycare, and वहाँ पर I realized लोगों को फर्स्ट एड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है. वेरी ट्रू And I'm like, मैं दिन भर उसको वहाँ पे रख कर I'm going out and doing my work. And by then I was an American Heart Association instructor. ओके So I was leading trainings for medical and paramedical staff. मतलब हम डॉक्टरों को इमरजेंसी केयर, राइट इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस वो हैं, ट्रेन कैसे, कर रहे हैं वो ट्रेनिंग हम उनको दे रहे थे. करेक्ट पर मैंने सोचा मतलब पेशेंट वहां पर आने के बाद उनकी ट्रेनिंग वहां पर काम आएगी, करेक्ट पर वो मतलब जहां पर इमरजेंसी होती होती है राइट वहां से लेके मेडिकल केयर तक पहुंचने राइट तक के डिस्टेंस में या राइट उतने समय में क्या करना है, क्योंकि लोगों राइट को पता ही नहीं है. तो डॉक्टरों तक ऐसा व्यक्ति पहुंचना चाहिए जिसको डॉक्टर बचा सकते हैं. करेक्ट वेरी So ट्रू this is where I started my work in pre-hospital emergency care, और हम जो बोलते हैं बेसिक फर्स्ट एड. करेक्ट So वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई. So where even I would like to add one more thing here. Yes. The basic purpose of starting this podcast or a health hub was a lot of times people just Google. oh yes, They are not aware of the right thing and they feel one size fits all. So the Absolutely. basic purpose was that the right expert come and talk about the right topic right, and we have the right information to be shared with our audience. correct. So when you are saying this, a lot of times I see when somebody is in the emergency situation, they ask on a WhatsApp group, they'll Google, they'll do Absolutely. YouTube, and then we have a situation Yes. that the situation is gone out Yes, of the control. yes. So we were wanting to do this episode since a long time. We are glad you are here. Thank you. So we would love to start with the first question now. Yes. First of all, I would like my audience to know what is first aid, or Right, what right. is emergency medication, and why is it so important in Okay. emergency situations? Fantastic question. मतलब एकदम perfect question. So first aid, according to the English definition, is basically anything that you do immediately, but temporarily to manage that situation till advanced medical help arrives or you get the treatment. So it is not treatment. तो first aid कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है. क्यों? क्योंकि वो that is the first thing, वो प्रथम उपचार है, the first thing that you do. पर वो Right. temporary होती है, वो situation manage करने के लिए. True. So it is not something that you do कि वो permanent cure You're not हो. treating the No, no, patient. you're not. You're just handling the Correct. situation. Yes. क्योंकि treatment कौन दे सकता है? Treatment सिर्फ एक डॉक्टर देगा. Doctor देगा. Even inside the hospital, nurses also. डॉक्टर बताएंगे वो ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट देंगे. करेक्ट. ट्रीटमेंट देने की जो सुविधा है और क्षमता है. करेक्ट. दैट इज ओनली फॉर डॉक्टर्स. डॉक्टर्स. ट्रू. तो ट्रीटमेंट फर्स्ट एड इज नॉट ट्रीटमेंट. करेक्ट. तो एनीथिंग लाइक कट जाता है, हम पट्टी बांध देते हैं, दैट इज आल्सो फर्स्ट फर्स्ट एड. एड. या. सो द क्वेश्चन देन कम्स कि फर्स्ट एड में ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, करेक्ट. राइट? तो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पर्सन हु हैज बीन ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड, और मेरे बगल में और एक इंसान खड़े हैं जिनको Right. फर्स्ट एड ट्रेनिंग नहीं मिली है. राइट. हम दोनों ने फर्स्ट एड दिया, दोनों में कोई फर्क होगा? राइट. डेफिनेटली. अगर ये मैं क्वेश्चन आपको 100% पूछ होगा. होगा, but अगर 100% मैंने होगा. आपको ये पूछा कि क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस? Because the one person is expert to handle that situation, the other person maybe not. ठीक है. सो लेट मी जस्ट इलैबोरेट फॉर द ऑडियंस सेक. हाथ में कटा है, खून को रोकना है, ये मैं भी जानती हूँ, वो भी जानते हैं. Correct. मैं भी पट्टी बांधूंगी, वो भी पट्टी बांधेंगे. Correct. व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस, ट्रेनिंग और विदाउट ट्रेनिंग? So, what ointment is to be used? How do you do that? Not every cut is same. How Absolutely. severe is that situation? There Absolutely. can be different factors to that situation. Absolutely. So what you're saying essentially is मुझे ट्रेनिंग जो कि मिली है, मुझे ये पता है कि वहां पे कटा है, खून को रोकना है, पट्टी बांधनी है, उसमें हल्दी, चंदन, चाय पत्ती, ग्रीस ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सब डालकर नहीं बांधना है, बिकॉज दैट विल लीड टू इन्फेक्शंस. Correct. तो ये हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं. तो ट्रेनिंग में बेसिकली व्हाट वी टीच इज, जैसे आप अभी बोल रहे थे गलत चीजें Correct. गूगल करते हैं, तो व्हाट वी टीच इन ट्रेनिंग इज बेसिकली कि सिचुएशन को पहचानो, क्या क्या स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 फटाफट लेने की हम ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ पर. एंड ओवर एंड अबव दैट व्हाट वी डू इज टीच यू व्हाट इज नॉट टू बी डन. Correct. क्या नहीं करना उस सिचुएशन में जिसकी वजह से उस
इंसान की हालत और खराब हो सकती है। Correct. डैमेज ऑलरेडी हुआ है, इसीलिए इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। Correct. So what we do is, first aid is always all about 3 P's. Hmm. When you give first aid, it's supposed to promote recovery. Right. It's supposed to preserve life. And Right. it is supposed to prevent worsening. तो Right. ये 3 P's के अंतर्गत हम ये सिखाते हैं first aid. So Correct. training becomes very important. Hmm. Because like we say, good first aid is going to help you. Hmm. Bad first aid has the capacity to kill. Yeah. So that is the difference. Hmm. So first aid में भी there is always good first aid and bad first aid. Right. So So now, just related to this question, Yes. what are the different, emergency situations where you feel that first aid is utmost important? oh, so many. I mean, in fact, everyone actually. क्योंकि let's say जैसे bleeding की हमने example ली, अगर bleeding का वो घाव जो है बहुत गहरा है एंड खून बहुत बह रहा है, तो then you have to understand कि ये जानलेवा हो सकता है। अगर यहाँ पर फर्स्ट एड तुरंत नहीं दिया या सही तरीके से नहीं दिया, तो ज़्यादा खून बहने की वजह से इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। Right. फ्रैक्चर्स को सही नहीं जोड़ा या हमने वहीं पर सीधे करने की कोशिश की, लेट्स से समबडी हैज, क्योंकि ये बहुत लोग करना चाहते हैं। Right. आई Right. हैव हैड मेरे जो मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मेनी ऑफ देम हैव कम टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम क्योंकि उनको गलत फर्स्ट एड मिला है या Hmm. उनके किसी रिश्तेदारों को गलत फर्स्ट एड मिलने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। तो ऐसे Okay. लोग बहुत आते हैं ट्रेनिंग के लिए एंड दे डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस। Right. So I've Right. had one of the marathoner runner community person come in for our training, Hmm. and he was describing he had a traffic accident and जहाँ पर उनका पैर पूरा टूट गया था एंड उल्टा हो गया था। Hmm. बट Hmm. पीपल ऑन द रोड लिटरली उनका पैर उन्होंने सीधा किया और इतना ज्यादा पेनफुल था दैट वो वहां पे बेहोश होके गिर गए। ही डजंट रिमेम्बर एनीथिंग उसके बाद। Oh. सो गलत फर्स्ट एड, सो इवन इन स्मॉलर छोटे मोटे फ्रैक्चर्स हैं या ब्लीडिंग है, Hmm. any situation for that matter can become Even worse. yes. For example, हम ये trainings में भी ये सारे इस्तेमाल करते हैं Hmm. कि snake bite है, Hmm. तो Hmm. snake bite के ऊपर ना टाइट बांध देना, Hmm. टूरनी के बांधना, जोर से पट्टी बांध के टाइट खून Hmm. का सर्कुलेशन रोकना। Hmm. दिस इज अ वेरी कॉमन फर्स्ट एड मिथ। हाँ, correct. ओके, ये मिथ है, मतलब मिसकंसेप्शन है कि ये ऐसे हम्म, करना होता है क्योंकि हम्म। खून के थ्रू जहर फैलता फैलेगा, है। हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बाय द टाइम ये बांध कर हमारे पास जब हॉस्पिटल आते हैं, वो पूरा जो पार्ट होता है वो काला पड़ा होता है, तो वो काटना पड़ता है, एम्प्यूटेट करना पड़ता है। तो दीज आर मेनी थिंग्स जो आप कोई भी फर्स्ट एड सिचुएशन उठा लो, अगर हम्म। आपको सही तरीका नहीं पता है, इट कैन गिव राइज टू कॉम्प्लिकेशंस। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर मतलब आई कांट टेल यू कि 4-5 चीजें हैं जहाँ पे ध्यान बरतना है। Right. एनी फर्स्ट एड सिचुएशन। So in short, I feel, every healthcare situation needs a first aid. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। And a lot of times I also see that, the example you gave, cut आ गया है. And a lot of people feel कि जो first aid दिया है, यही इसका treatment and they don't take the further treatment. That also is the situation I have seen. Yes, especially heart attack. हाँ. आजकल के जो हार्ट अटैक हैं, सो इंडिया इज मतलब कैपिटल ऑफ हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। Yeah. तो जिनको डायबिटीज है उनको हार्ट अटैक अगर आता है तो जरूरी नहीं है कि उनको छाती उसी तरह दर्द करे जैसे Yes. टिपिकल हम कहते हैं छाती में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। सो मे बी द प्रेजेंटेशन इन डायबिटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। Yes. तो जनरली क्या होता है, हार्ट बर्न, मतलब बहुत एसिडिटी हो रही है, हल्के छोले खाए थे, बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, तो हमने एंटासिड ले ली, हाँ. हमने चाय पी ली। तो ये सारे जो घरेलू नुस्खे नुस्खे हैं, हैं, वो right. इस्तेमाल करके दे ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि अगर हॉस्पिटल गए तो क्या पता सच में हार्ट अटैक निकले तो Admit कर एडमिट कर देंगे. देंगे। तो बेसिकली ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं, बट बाय द टाइम ये सब घरेलू नुस्खे यहाँ वहाँ डॉक्टर से मिलके फिर फाइनली जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी रूम से रिससिटेशन ईआर जो हम बोलते हैं, पुराने ज़माने में इसको कैजुअल्टी कहते थे। Yes. सो नाउ दीज आर कॉल्ड एज इमरजेंसी रिससिटेशन रूम्स, ईआरस। Okay. सो ईआर में जब हमारे पास आते हैं तब तक इट्स वो टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया होता है। Right. हमारी जो दवाइयाँ हैं वो एक टाइम पीरियड में काम करती हैं, Right. तो वो टाइम पीरियड के अंदर आप
अगर हमारे पास आओगे तो वो दवाइयाँ काम करेंगी, Right. कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, Right. आप अच्छे होके घर पे जा सकते हो। Very true. बट वो क्योंकि टाइम निकल जाता है, इट बिकम्स तो वो फ़िल्मी सीन हो जाता And है। also everybody feels that everybody is going to have same kind of symptoms. नॉट रियली। Yeah, if not, नहीं, if नहीं, if they don't yeah. have that symptom, they feel कि ये नहीं है वो situation. As you rightly said कि acidity है तो they never feel कि heart attack हो Yes, सकता है. yes. It has to be chest pain. वो भी लेफ्ट साइड वाला, हाँ, राइट साइड वाला। सो आई they हैड avoid that. सो वी हैड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन वन ऑफ द टॉप कॉर्पोरेट प्लेसेस, जहाँ पर वी वर टॉकिंग अबाउट कैसा टाइप ऑफ चेस्ट पेन, वी डिस्कस दिस, वी yes. डिस्कस व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, कैसे आप पहचानोगे सिचुएशन को। Right. तो वहाँ पे देयर वाज दिस लेडी हु स्टूड अप एंड शी इज लाइक, फर्स्ट टाइम हमको समझ में आया है कि राइट साइड का दर्द होगा तो भी हार्ट अटैक हो सकता हो है, सकता है. क्योंकि 2 महीने पहले बिल्डिंग में किसी को राइट साइड में दर्द कर रहा था छाती में, बट हमने कहा अरे राइट साइड में है ना, तो नहीं है हार्ट अटैक। Oh, एंड लेटर ऑन 6 आवर्स लेटर व्हेन शी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, इट टर्न्ड आउट टू बी हार्ट अटैक। तो right. दे लाइक अभी मुझे समझ में आ रहा है ऐसा कैसे हुआ। वी वर नॉट वेरी मतलब वी वर कंफ्यूज्ड, हमको मानना नहीं था कि ऐसे कैसे हार्ट अटैक हुआ। Right. When she came for the training, Yeah. we took her through the structured curriculum. Correct. That's when she's like, okay, now I realize. Now मैं सबको जाके बताऊंगी। Hmm. So this is the difference that we find, that people Right. do not have the actual, like you said, वो एक्चुअल नॉलेज नहीं है जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं या गूगल है। Very true. सो बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस आर डूइंग Right. So too much knowledge or half knowledge is also dangerous. wrong knowledge actually. Yes. See, there are influencers right now giving out so many wrong advice, Correct. galat information. In fact, I think recently I read a news report saying China has brought down this, they have brought in this law that says unless you can give your credibility, आपके qualifications, you can't be an influencer. So all those posts and all those channels are being shut down Correct. by China. Correct. Because it's leading to too many complications. People Right. ending up in the hospitals and dying because of wrong advice. Right. So that is a law that China has brought in. Right. Correct. ये थोड़ा I think I think that is the need of an hour. yes, absolutely true. So my next question is, how can first aid help a injured person or a medical emergency person before the actual medical help arrives? Oh, super question. I am very invested in this क्योंकि the place I'm working in right now, MGM Medical Hospital, Medical College and Hospital Kamote, हाँ. we are now an AHA chest pain center and a stroke center. Stroke means paralysis का attack जो आता है, आता it's a है. brain attack. Correct. Heart attack, brain attack. So we are a brain attack and heart attack center. Okay. What that means is we are able to treat and give best outcomes in any heart attack victim and any stroke victim. So these are called as stroke units. Right. Okay, तो basically लोगों को ये idea ही नहीं है बाहर की ऐसी कोई चीज है. Like, heart attack centers हैं and there are stroke centers. Correct. So especially in stroke, I want to talk to you about this question. Stroke is paralysis का attack. Okay, जहाँ पर एक बाजू जो होती है शरीर की वो काम करना बंद कर देती है. Yeah. Right. नाउ हार्ट अटैक के विक्टिम में क्या होता है, मुझे तकलीफ हो रही है, लाइक मुझे पेन हो रहा है, तो मैं उठ के मदद मांगूंगी या मांगूंगा, Correct. राइट? Correct. तो ट्रीटमेंट उनको जल्दी मिल जाती है. Right. बट स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी जो एक बाजू खराब हो रही है या काम नहीं कर रही है, दे आर नॉट अवेयर कि उनके साथ कुछ हो रहा है. I know. तो अगर उनके अगल बगल के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, अगर उनको पता नहीं है तो इस व्यक्ति को ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिलेगी. I know these kind of cases Yes. for sure. Yeah. एंड अगर इनको पता नहीं है कि स्ट्रोक सेंटर में 1 घंटे के अंदर अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो सीटी We स्कैन lose टाइम the में नहीं golden होगी. period. Yeah. द गोल्डन पीरियड इन स्ट्रोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. क्योंकि 3 घंटे के अंदर मुझे सीटी स्कैन कराना है, उसकी रिपोर्ट पढ़नी है और फिर ट्रीटमेंट शुरू करना है. तो इफ द विक्टिम रीचेस मी विद इन 1 आवर ऑफ सिम्टम्स, Correct. मैं तुरंत सीटी स्कैन अगले 40 मिनट्स में मैं सीटी स्कैन कराकर रिपोर्ट करा सकती हूँ एंड ट्रीटमेंट विद इन द नेक्स्ट 1 आवर आई कैन इवन स्टार्ट ट्रीटमेंट एंड इससे आउटकम्स बहुत बेहतरीन होते हैं. इनफैक्ट हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका पूरा वन साइड काम नहीं कर रहा है, बट जैसे ही हमने ट्रीटमेंट शुरू की है, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद 80% फंक्शन वापस आया हुआ है. मतलब जितनी जल्दी, सो वी कॉल दिस एज टाइम इज ब्रेन. Right. टाइम इज ब्रेन मतलब आप Right. जितने कम समय में आप पेशेंट को हमारे पास लेकर आओगे,
उतना ज़्यादा ब्रेन हम बचा सकते हैं, उतने ज़्यादा फंक्शन के साथ हम भेज सकते हैं। नाउ Right. 80% फंक्शन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे और सेकंड डे ट्रीटमेंट मीन्स मैं अगले 90 दिन में फिजियोथेरेपी के साथ और 10 to 15% इम्प्रूवमेंट करा सकती Improvement हूँ, कर सकती हूँ, right. राइट? सो दिस मीन्स लाइक So ऑलमोस्ट especially in the case of paralysis, स्पेशली so important. मतलब so कितना important. पेशेंट का सफरिंग आप कम कर Yes. सकते हो, एंड ये पेशेंट के हाथ में नहीं है। ये अगर फैमिली के हाथ में यस है। उनके आसपास वर्कर्स हैं, उनके वर्क प्लेस के जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, Yeah, right. आपके क्लास 4 क्लास 3 वर्कर्स हैं, सी दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू कम एंड हेल्प। Correct. तो अगर इनको ट्रेनिंग दी हुई है, Correct. इनको बताया है कि ये स्ट्रोक सेंटर है, यहाँ पर लेकर जाना है अगर ऐसे कुछ होता है, Hmm. तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हुज lives can be saved, because stroke is very very life threatening also. Right. तो 2017-18 में WHO had run a campaign in the Indian subcontinent, Hmm. which is 1 in 6. Correct. What it meant was there is one person every 6 seconds dying because of stroke. जिन लोगों को हम जानते हैं पैरालिसिस के साथ, Yeah. वो बच गए हैं, they have survived the stroke, Hmm. but that's the kind of fatality, मतलब stroke can actually kill. Right. Right. This is the best example for your question कि first aid कैसे, अगर आप उस golden period में सही steps लेते हो, Yes. that person can get his life नहीं function also back. He won't Back. have to, he or she won't have to depend on other people, वो disability जो होती है, Correct. वो भी आप कम कर सकते हो। Correct. Just it's literally a 5-minute test जो हम सिखाते हैं। Be Correct. fast, Correct. balance देखो, face का symmetry देखो, हाँ. just raise the arms and seek, दोनों तरफ का power same है या नहीं, speech देखो। अगर इनमें से कुछ भी is missing, slurring है, arms raise नहीं कर पा रहे, weakness है, तो T is time is brain, time to go to the stroke center. So this is very very important, and for us it's very important कि patients हमारे पास directly आए, Right. घूम कर they'll go to 10 other places and then waste time. Yeah. So if you can come to us. My family, I know this kind of exact case because when he felt that something is wrong, he felt he just assumed that BP is low, blood pressure is low, and he went to sleep. Dizzy lag raha and so gaye. And after 7 to 8 hours, we could not manage the situation. So he was bedridden for years and years. Yes. So this is extremely, so these are the kind of patients that come to us. तो यहाँ पर ना बहुत बुरा लगता है। Now the age group of these kind of patients is coming down. मतलब पहले तो वो ना 60-70s के बाद होता था, right. Now the age group has come down. मतलब this is very much in the वो productive life वाला जो age group है ना, में देखा जाता है। Correct. So imagine a productive person becoming disabled, वो family पे pressure. This affects the entire family, the functionality of the family, and even the mental health of the family. Absolutely. So Shruti, my next question is, what are the common mistakes people generally make while helping an injured person? Oh wow. And I'm absolutely loving the examples you are giving. So if you can put forward some examples which our audience can relate with, that will be amazing. So oh god, that the list is infinite. I know. But the most common thing is पानी देना is probably something I will start off with. Okay. किसी भी emergency में, especially road traffic accident है, heart attack है, cardiac arrest है, इंसान बेहोश होके गिरा हुआ है, people want to force something in their mouths. Please don't. Because there were so many videos that were viral in between, WhatsApp pe and everywhere, where there is this New Delhi airport pe there's this man lying down. People are pushing sorbitrate ka tablet in his mouth, trying to give him water, trying to give him CPR. तो एक तो सिचुएशन हम नहीं पहचान सकते हैं, दूसरी बात we want to give water. I know इंडिया है, अतिथि देवो भव, पानी देना पुण्य का काम है. That's the first thing which comes to your mind. But again वो आप पानी दे रहे हो, गंगा जल दे रहे हो. Correct. That's the difference, Yeah. First aid में when you don't know, please don't give anything by mouth. Because a very simple example I'll tell you is, as anesthetists, हम लोग सर्जरी के पहले आपको 6 से 8 घंटा भूखा रखते हैं, right? Starvation is very important. Yeah. So you have to understand why. Because जैसे इंसान बेहोश होगा, अगर उसे उल्टी होगी,
तो वो उल्टी कहाँ पर जाएगी? इट विल गो इनसाइड द लंग्स। करेक्ट। और जैसे ही लंग्स के अंदर कोई भी चीज़, हवा के अलावा और कोई भी चीज़ जाती है, यू ऑल्सो नो, या अपनी खुद की थूक भी अगर चली जाती है करेक्ट। विदिन द विंड पाइप, हम्म। तो द बॉडी ट्राइज टू थ्रो इट आउट ना, Yeah. सीफियर, या वो या मराठी में ठसका लागणे बोलते हैं, वो हम्म। इट ट्राइज टू थ्रो इट आउट। करेक्ट। बिकॉज लंग्स तक अगर कोई भी चीज़ चली जाती है तो व्हाट हैपेंस इज लंग्स डैमेज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं काम करना। बट सिर्फ लंग्स नहीं बंद होते, लंग्स के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो पूरे शरीर को शट डाउन कर सकते हैं। या ट्रू। So the complications of going onto a ventilator and dying goes up to 90 and Quite high, 90% and that's high. yeah, correct. Okay, so हम इसीलिए we have this rule, ऑपरेशन के पहले कुछ नहीं लेना, पेट को खाली रखना है। Correct. वेरी कॉमनली अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास छोटे बच्चों के सर्जरीज अगर जब होते हैं तो अर्ली मॉर्निंग रखते हैं हम, Hmm. 6 बजे 6:30 बजे। Hmm. रात भर बच्चे ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बिफोर बच्चा रियलाइजेस कि मुझे भूख लगी है प्यास लगी है, Yeah, true. हमने ओटी के अंदर ले लिया है, ऑपरेशन शुरू कर दिया है, राइट, बिकॉज पेट खाली है तो इट्स सेफ। Correct. बट माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, राइट, हाँ, मेरा बच्चा सर्जरी के लिए Right. बिना खाए पिए दूध बिस्किट खिला के भेजते हैं और झूठ बोलते हैं हमसे कि नहीं कुछ नहीं खिलाया है। Hmm. नाउ व्हाट हैपेंस इज सर्जरी के दौरान जब हम बेहोश करते हैं बच्चे को, अगर उल्टी होती है तो सर्जरी या एनेस्थीसिया या बच्चे का जो भी, मतलब वो जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से नहीं, बट उल्टी होने की वजह से उसके जान को खतरा बढ़ जाता है। So true. सो these are very simple these things, So minute mistakes Very, somebody is yes. doing. क्योंकि And these are उनको life threatening. एब्सोल्युटली, तो ये फर्स्ट एड में भी यही लॉजिक है। Hmm. वी कॉल इट एस्पिरेशन सिंड्रोम, मेडिकल टर्मिनोलॉजी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन एस्पिरेशन का खतरा होगा, फॉर एग्जांपल किसी को चक्कर आ रहे हैं या हार्ट अटैक आ रहा है, अगले 15-20 मिनट में इंसान होश में है या नहीं रहने वाले हैं, ये अगर मैं गारंटी नहीं कर, मतलब गारंटी के साथ नहीं बोल सकती हूँ, तो इनको मुंह से कुछ नहीं देना है। बिकॉज अगर ये इंसान बेहोश हो गया, अगर उसे उल्टी होती है तो फेफड़ों में वो उल्टी जाकर लंग्स को डैमेज करने की संभावना बढ़ जाती है। Right. तो मुंह से कुछ ना दे, स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। सी तब ना वो शॉक में इंसान का ना गला सूखने वाला है, Hmm. राइट, वेट फॉर 15-20 मिनट्स, एक बार यू आर कंफर्म्ड कि ये इंसान बेहोश नहीं होने वाला है, Hmm. उसकी सांसें चल रही हैं, वो निगल सकता है, ही swallowing is present, कॉन्शियस है, अलर्ट है, Hmm. उसके बाद दे दो, बट Correct. immediately don't force water onto somebody. Hmm. So these are very smaller things, कि और घरेलू नुस्खे कब इस्तेमाल करने हैं, कब नहीं करने हैं, कौन से सिचुएशन में, Hmm. ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। Right. So burns में स्पेशली I keep hearing people tell me कि हम टूथपेस्ट लगाएंगे, हाँ, very common. घी और बटर लगाएंगे, Hmm. तो बेसिकली वहाँ पर क्या हो रहा है यही आपको समझ नहीं है। Hmm. जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता ही होगा हम मांस को कैसे कुक करते हैं, हीट देकर। Hmm. तो अगर कोई हिस्सा आपका जल रहा है दैट मीन्स वहाँ पर हीट है, Hmm. वो एरिया इज कुकिंग। Hmm. उसके ऊपर अगर आपने लेप लगा दिया, कोई भी Hmm. घी हो, बटर हो, कोलगेट हो, Hmm. इट इज लाइक दम बिरयानी। हाँ, correct. सो उसका हीट कम करना है। सो देयर इज लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड फर्स्ट एड, Yeah. कॉमन सेंस की And जरूरत people है। keep doing it what they had been seeing since a long, long time. I think And generation to curing, generation. मतलब वो ठंडक लाने के लिए कोलगेट, मैंने कहा मेंथॉल ठंडक लाता है पर एक्चुअली वहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है क्या, और क्या वो लेप की तरह काम कर रहा है Right. कि अंदर की हीट बाहर ही नहीं Just a feel good factor, I think. यस, सो इट्स वो लॉजिक इन अ वेरी डिस्टॉर्टेड वे। Hmm. क्योंकि क्या होगा ना, अदरवाइज पानी के नीचे 15 मिनट हाथ रख के खड़ा रहना पड़ेगा ना, यहाँ पे इंस्टेंट फिक्स है। Yeah, quick fix है. सो दैट इज द थिंग, इसलिए Correct.